Hello students, today we are going to discuss again the next exercise problem of our NCERT textbook. Let me start. The 5.7 question is that a body having the mass equal to 5 kg which is acted upon by the two perpendicular forces. So write down M equal to 5 kg, F1 equal to 8 Newton, F2 equal to 6 Newton, and then you have to write down as they are these both forces are perpendicular to each other, so we have write down here F1 perpendicular to F2. Yes or no? Next thing, that given that the magnitude and direction of the acceleration of the body, so what we have to here find out, we have to find out the acceleration magnitude as well as the direction equal to question mark. Yes or no? Now here the both forces are exerted on the object in mutually different directions. Okay, so first of all we have to find out the resultant force, then we are able to find out the value of the acceleration. So for that, here we are first write down the statement that let 8 Newton force will exert in a horizontal direction, as they are not providing any information regarding the proper direction, so we can assume in any way. Okay, so here we write down 8 Newton will be exerted in the horizontal direction, okay, that is x direction. So 6 Newton force will be automatically work, otherwise the act in which direction? Y direction. Yes or no? Okay, now as one is in the x direction and another is in the y direction, so we can consider one as the x component and second one is the y component. Okay, so resultant force will become, formula is equal to what? F1 square plus F2 square only. Okay, so 8 square plus 6 square, if you simplify it, then you are getting your answer as what? 10 meter. Okay, now you have to find out the acceleration. So acceleration equal to what? फोर्स डिवाइड बाय मास, एज एफ इक्वल टू एम ए हम लिखते थे अंदर. नाउ यू नो द रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज 10 न्यूटन, एंड मास इज ऑल्सो गिवन, दैट इज व्हाट? 5 kg. सो यू आर एबल टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. यस और नो? नाउ 8 Newton force in horizontal direction and 6 Newton is y. So we are easily say that the direction will tan theta equal to y component divided by x component, that is 6 divided by 8. ओके, और आप सिंप्लीफाइड करोगे तो आपको कुछ 0.750 जैसा आंसर मिलेगा. एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग दैट वैल्यू ऑफ 10 इनटू द एंगल, देन यू आर गेटिंग योर एंगल अप्रोक्सीमेट 36 डिग्री. समझ में आ रहा है? पर यहाँ पे ये जो थीटा इक्वल टू 36 पॉइंट समथिंग डिग्री मिलेगा, वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू मिलेगा भाई? 8 न्यूटन के विथ रिस्पेक्ट टू मिलेगा. क्यों? क्योंकि हमने उसको भाई एज अ एक्स अज्यूम किया था अंदर. समझ में आ रहा है यहाँ पे सबको पार्ट? यस और नो? तो यू हैव टू मेंशन दैट इन द स्टेटमेंट दैट हियर द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स द एंगल ऑफ 36 डिग्री एंड 53 मिनट विद द 8 न्यूटन फोर्स. ओके, देन एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन हमको कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा भाई? ये जो फोर्स होगा उसी की डायरेक्शन में मिलेगा. यहाँ पे हमने एक्चुअल में जो फाइंड किया डायरेक्शन, वो किसका फाइंड किया? फोर्स का फाइंड किया. और हमको पता है कि जो डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन में हमको एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे रिटार्डेशन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है अंदर. समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? यस और नो? चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो द ड्राइवर ऑफ द three-wheeler moving with a speed of 36 km. So write down V0 equal to 36 km per hour. So if you are converting it into the meter per second, then you will get your answer 10 meter per second. बराबर. Sees a child standing in the middle of the road and brings its vehicle to rest in 4 seconds. So write down t equal to 4 seconds. Just in time to save the child, what is the average retarding force? Means F equal to question mark on the vehicle and the mass of the three wheeler, यानी कि आपको M1 इक्वल टू 400 kg दिया है और दूसरा ड्राइवर का भी मास दिया अंदर, तो M2 इक्वल टू क्या आएगा भाई? 65 kg. तो टोटल मास क्या आएगा? M1 प्लस M2 इक्वल टू 400 प्लस 65 इक्वल टू आंसर क्या आएगा भाई? आपका 465 kg आएगा. तो ये आपका गिवन और फाइंड आउट क्लियर हो गया आपको सबको. बराबर. अब आपको क्या फाइंड करना है भाई? फोर्स फाइंड करना है अंदर. बराबर. और वो फोर्स भी कौन सा है भाई? रिटार्डिंग फोर्स है. बराबर. और सीधी सी बात है, बच्चे को बचाना है तो उसको 4 सेकंड के अंदर कार को क्या करना पड़ेगा? रेस्ट, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी अपने आप क्या हो जाएगी भाई? 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी वैल्यू में अंदर. समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट?
बराबर। अब आपको फोर्स फाइंड करना हो तो आपके पास एक इक्वेशन था एम है, पर एक्सेलरेशन नहीं दिया, तो हमारे पास दूसरा भी इक्वेशन था डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी अंदर। यस और नो? डेल्टा पी का मतलब क्या होगा, एम वी माइनस एम वी जीरो और डिवाइड बाई डेल्टा टी। मास आपको दिया है, यस सर। वेलोसिटी फाइनल जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी हमको ऑलरेडी दी गई है, और टाइम भी हमको पता है। सीधा हमारा आंसर आ गया कि ना आ गया अंदर? इतना लंबा चौड़ा करने की रिक्वायरमेंट ही क्या है अंदर? समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आपका आंसर माइनस में क्यों आना चाहिए अंदर भाई? क्योंकि यहाँ पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सा है? रिटार्डिंग फोर्स। इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी नेगेटिव। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? चल नेक्स्ट एग्जांपल की और बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट अ रॉकेट विद द लिफ्ट ऑफ मास। ओके, सो हियर मास इज गिवन दैट इज 20,000 kg is blasted upward, barabar, with the initial acceleration of 5 meter per second. So here v0 acceleration is given, so that's why acceleration equal to 5 meter per second square. Then we have to calculate the initial thrust, that is the force of the blast. तो thrust equal to question mark. अब आपको लगेगा ब्लास्टेड यानी कि रॉकेट ब्लास्ट हो गए, नहीं। एक्चुअल में रॉकेट को हम जब लॉन्च करते हैं तो उसके इंजन में फ्यूल क्या होता है? बर्न होता है, जिससे एग्जॉस्ट निकलता है, और वो एग्जॉस्ट जो बाहर निकलता है उसके थ्रस्ट से बराबर हमारा रॉकेट को क्या मिलता है? अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलता है अंदर, और उसकी वजह से वो क्या जाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है अंदर। पर एक चीज़ होती क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम देखने चाहें तो उस पर बाय डिफॉल्ट एक फोर्स लगता रहता है mg, बराबर। और यहाँ पे रॉकेट को जाना का है ऊपर, तो यहाँ पे उसने क्या लिया गया? थ्रस्ट लगाया अंदर टोटल। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे जो थ्रस्ट लगाता है उसमें से कुछ उसका जो पार्ट है वो mg को बैलेंस करने में जाएगा, और बाकी का जो बचता है उससे उसको क्या मिलेगा भाई? मोमेंटम मिलेगा, यानी कि उसको एक्सेलरेशन मिलेगा उससे अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? आप सबको एक कॉमन चीज़ पता होगी अंदर कि जब भी गाड़ी में एक बंदा होता है और उसकी जगह 7-8 बंदे गाड़ी में बैठे होंगे तो क्या वही की वही गाड़ी आपको सेम माइलेज देगी? एक्चुअल में इंजन भी वही है, गाड़ी भी वही है। एक बंदा बैठता है तो हमको थोड़ा ज़्यादा एवरेज मिलता है, जबकि ज़्यादा बंदे बैठते हैं तो हमको कम मिलता है। तो उसका मतलब क्या हुआ अंदर कि यहाँ पे भाई इंजन अपना फोर्स मोशन के लिए तो यूज़ कर ही रहा है अंदर, पर साथ में उसकी कुछ एनर्जी आपके वेट को बैलेंस करने में भी यूज़ होती है अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? बराबर। तो यही एक चीज़ है जिसकी वजह से जब भी हम क्या करते हैं भाई, एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन में लगेज वेट का बर्डन जो होता है वो फिक्स्ड होता है कि आप 20 kg या 25 kg से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अगर आपको ज़्यादा ले जाना भी है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत हाई रेंट पे करना पड़ता है, जो एक पैसेंजर के रेंट के बराबर भी हो सकता है अंदर, बराबर। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है कि जितना वेट जो हमारा एरोप्लेन उस पर बढ़ेगा तो उतना वहाँ पे उसको फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा अंदर, बराबर। तो मे भी ऐसा चांस होता है कि फ्यूल कंजम होते होते वहाँ पे बीच में ही ख़त्म हो जाए अंदर, तो बेचारा ना लेना ना देना, एयर क्रैश हो जाए ना अंदर। इसलिए वो कभी भी लिमिट से ज़्यादा लोड वहाँ पे करते नहीं है। वैसे ही रॉकेट डिज़ाइनिंग में भी यही चीज़ देखी जाती है कि जब भी आपका वेट हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे फ्यूल की क्वांटिटी को बराबर बैलेंस किया जाए, इसीलिए ये चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। इसलिए जो भी एजेंसीज ने जब भी रॉकेट लॉन्चिंग का प्रैक्टिस किया था वो इनिशियली फेल क्यों हुए? क्योंकि ये कंसेप्ट हमको प्रॉपरली समझ में नहीं आता था कि इसको समझे के अंदर। इसीलिए फोर्स का एक नया डेफिनेशन निकला जिसका नाम है थ्रस्ट, बराबर। यानी कि आप परपेंडिकुलर में कितना फोर्स लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं अंदर। समझ में आ गया सबको इतना पार्ट? चल, तो यहाँ पे है क्या कि इंजन से जितना थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा, एक तो mg को बैलेंस करने में यूज होगा और दूसरा उसको मोशन देगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो हम बोल सकते हैं कि उसको जो भी रिजल्टेंट मोशनल फोर्स मिल रहा है यानी कि ma मिल रहा है वो और कोई नहीं पर थ्रस्ट माइनस mg के बराबर होगा अंदर, क्योंकि टोटल थ्रस्ट का mg बैलेंस निकल गया तो बाकी का उसको मोशन के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। समझ में आ गया, बराबर। तो फिर हम बोल सकते हैं कि T इक्वल टू फाइनली क्या, वेट को भी बैलेंस किया प्लस मोशन का भी हुआ, दोनों में से m को बाहर निकाल दो, g आपको पता है 10 या 9.8 जो लेना है ले लो, और एक्सेलरेशन आपको यहाँ का दिया गया है 5, बराबर, और m की वैल्यू 20,000 kg है, तो आपको आपका थ्रस्ट मिल गया कि ना मिल गया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? यस और नो? तो यहाँ पे जो थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो रफली क्या होगा? 3 × 10⁵ न्यूटन जितना आंसर मिलेगा आपको अंदर। क्लियर?
चल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है अंदर कि वन बॉडी ऑफ मास, सो राइट डाउन m इक्वल टू 0.40 kg। ओके, नेक्स्ट इज initially moving with the speed of 10 meter per second, okay, and the speed is what, constant speed, so v equal to यानी कि v0 इक्वल टू हमारा क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा टू द नॉर्थ डायरेक्शन, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, नॉर्थ डायरेक्शन लिख देंगे हम अभी, बराबर। नाउ is subjected to the constant force of 8 Newton, so write down F equal to 8 Newton which is directed towards the south, so here we write down the south। so from this question data we are now able to say that this force is nothing but it is the resistive force। समझ में आ रहा है क्यों रेजिस्टिव है, क्योंकि भाई मोशन तो नॉर्थ में हो रहा है जबकि फोर्स साउथ में लग रहा है अंदर, बराबर। और उसके लिए उसको जो टाइम लग रहा है वो क्या है भाई, डेल्टा टी इक्वल टू 30 सेकंड है अंदर, बराबर। सो नाउ वी हैव टू टेक सम कंडीशन इज दैट टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0, बराबर, एंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम विल बी एक्स इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे जब भी फोर्स लगाना स्टार्ट हुआ, कौन सा वाला, ये 8 न्यूटन वाला, तो एट दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर टाइम वैल्यू इक्वल टू 0 एंड पोजीशन वैल्यू इज ऑल्सो 0। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और ये डेटा के बेस पे व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू प्रिडिक्ट द पोजीशन। प्रिडिक्ट करके बोल देना नहीं है, हमको कैलकुलेट करके बोलना है अंदर, बराबर। t इक्वल टू -5 सेकंड होगी तब क्या होगा, 25 सेकंड और 100 सेकंड, ये तीन डिफरेंट टाइम में कब होगा वो हमको कैलकुलेट करके बताना है अंदर। अब आपको मे बी एक डाउट क्रिएट हो सकता है यहाँ पे कि t इक्वल टू यहाँ पे भाई -5 सेकंड दिया है, तो सर टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है अंदर, बराबर। तो एक्चुअल में है क्या यहाँ पे अंदर कि हमने टाइम पहले से कंसीडर नहीं किया है, जब फोर्स अप्लाइड किया वो टाइम को t इक्वल टू 0 बोला। एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट तो पहले से मोशन कर ही रहा था, पर जब भी हमने बीच में उसको फोर्स लगाया वो फोर्स लगाने का टाइम हमने 0 एस्टिमेट किया अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो ये लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इसके आगे का टाइम को हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो हमको नेगेटिव वैल्यू में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, ये सुनो। इसलिए हम यहाँ पे -5 सेकंड का इंडिकेशन कर रहे हैं अंदर। तो -5 क्यों लिखा आपको सबको पता चला अभी, बराबर। ये वैल्यू नहीं है, खाली सिचुएशन बताने के लिए माइनस साइन रिप्रेजेंट की गई अंदर, बराबर। अब आपको पता है कि फोर्स कौन सा टाइम पे लग रहा है, 0 टाइम पे ही लग रहा है अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। और आपका जो पोजीशन है x इक्वल टू 0 वो भी यही टाइम पे है अंदर, बराबर। तो अगर आप x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करें अंदर, बराबर, x वर्सेस t का अगर आप ड्रॉ कर तो हम यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे t रखते हैं अंदर, या तो फिर कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। हम यहाँ पे t के बारे में बात करें अंदर, चलो, बराबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमारा x इक्वल टू भी 0 है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन हम ओरिजिन के विथ रिस्पेक्ट टू ही बताएंगे अंदर। क्लियर हो रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो हमको इतना तो पता है कि जब तक t इक्वल टू 0 सेकंड टाइम नहीं होगा तब तक उस पर फोर्स नहीं लगने वाला है। और t इक्वल टू 0 टाइम वाली पोजीशन भी ओरिजिन है, और वैसे भी हम हर डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही रिप्रेजेंट करते हैं अंदर, बराबर। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि -5 सेकंड से लेके 0 सेकंड के बीच का इंटरवल लिखेंगे, बराबर। तो हमको इसका पोजीशन पता है भाई x इक्वल टू 0 है, तो इसकी पोजीशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। पर यहाँ पे दोनों के बीच में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो उसका वेलोसिटी ये -5 से लेके 0 सेकंड की टोटल जर्नी में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कौन सी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड रहेगी कि नहीं रहेगी अंदर। समझ में आ रहा है। अगर कोई भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस या टाइम कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको भाई डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल टू क्या होगा भाई x बाई टी था, तो v इक्वल टू क्या होगा फिर से v इक्वल टू एक्स बाई टी लिखते थे, तो x इक्वल टू क्या होगा vt होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट आपको पता है, टाइम भी आपको -5 दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई -50 मीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा अंदर। अब सीधी सी बात है कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पोजीशन है, तो उसके पहले वाले टाइम पे उसकी पोजीशन भी नेगेटिव ही तो होनी चाहिए थी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ कहना। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट। नाउ
अब उसको क्या हो रहा है कि भाई जब टाइम आपका है वो क्या होता है कि 25 सेकंड होता है, तो वो टाइम के लिए उसकी पोजीशन हमको प्रिडिक्ट करनी है अंदर, बराबर है। तो हमारे लिए फिर वही केस रहेगा भाई t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पोजिशन है उसके अंदर, जिसको हम x0 बोलेंगे, और हमको t इक्वल टू 25 सेकंड के लिए x25 कैलकुलेट करके बताना है अंदर, बराबर। तो हमको पता है भाई x की फॉर्मूला क्या लिखते थे अंदर, हम v0t प्लस 1/2 at² लिखते थे, जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फोर्स इक्वल टू ma पर से a की वैल्यू F/m करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अंदर, यस और नो। तो एक्सेलेरेशन आपको मिल जाएगा, पर जब भी एक्सेलेरेशन आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और खुद में वो अपने आप में कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिव है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? तो आप इस तरह से अगर इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 20 मिलेगी, पर हम कौन सी लेंगे भाई, -20 लेंगे, और फिर वो वाले इक्वेशन में सबकी वैल्यू अवेलेबल है प्लेस करोगे तो आपको मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाइड करके फाइनल आंसर क्या मिलेगा भाई, 6 किलोमीटर मिलेगा अंदर। क्या मिलेगा? 6 किलोमीटर मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो? चल अब नेक्स्ट बात करें तो हमने 2 शिखर तो पार कर लिए, अब तीसरा शिखर हमको पार करना है, वो क्या है, 100 सेकंड वाला है अंदर, बराबर। अब 100 सेकंड के बारे में बात करो तो एक्चुअल में है क्या कि t इक्वल टू 0 से लेके 30 सेकंड तक, बराबर, फोर्स की वैल्यू एग्जर्ट हो रही है, यानी कि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है अंदर, बराबर। जबकि 30 से लेके फिर 100 तक उस पर, यानी कि 70 सेकंड के ड्यूरेशन में उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, बराबर। पर इसके बाद 30 सेकंड पे उसने जो भी नई वेलोसिटी अचीव की, उसके बाद 30 से लेके 100 तक उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी भाई, कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, बराबर। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा कि भाई हमको सबसे पहले 30 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस, 30 सेकंड में कितना किया वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अंदर, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं कर रहा है। तो जिस तरह से आपने x25 फाइंड किया, उसी तरह से आप क्या फाइंड कर दो भाई, x30 फाइंड कर दो, सारी की सारी वैल्यू वही की वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। खाली टाइम में आपने 25 लिखा था, उसकी जगह आपको क्या लिखना होगा, खाली 30 लिखना होगा, तो आपको वो आंसर मिलेगा। तो सीधी सी बात है, 25 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो 6 किलोमीटर था, तो ये 8.7 किलोमीटर मिलेगा आपको। और माइनस साइन क्यों आती है वो तो आपको पता ही है अभी अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट? अब हमको क्या करना है कि भाई 30 सेकंड में ये जो रिटार्डिंग फोर्स उस पर लगा, उसकी वजह से उसकी नई वेलोसिटी क्या हुई वो हमको चेक करना पड़ेगा। तो उसका इक्वेशन क्या था भाई, v0 प्लस at लिखते थे। a की वैल्यू आपको पता है, t की वैल्यू 30 लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है, तो फाइनल वेलोसिटी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर। तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो आपको पता आंसर मिलता है -590 मीटर पर सेकंड मिलती है अंदर। कितनी मिलती है भाई, -590 मीटर पर सेकंड, बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 से लेके 100 सेकंड तक वो इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा अंदर। समझ में आ रहा है? और ये ड्यूरेशन कितना हुआ, 70 सेकंड, और यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हम सीधा x के लिए vt फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। v आपको -590 पता है, और t की जगह हम 70 लिखेंगे, तो आपको बाकी का x 70 भी मिल गया कि ना मिल गया अंदर, जो आपको 41,300 जैसा कुछ मिलेगा अंदर। अब यहाँ पे हमको तो भाई टोटल 100 सेकंड के लिए फाइंड करना था, तो इक्वल टू क्या होगा भाई, x30 प्लस x70 दोनों का एडिशन कर दो, तो आपको फाइनली एडिशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, -50 किलोमीटर मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, हाँ क्या ना? तो हमने सारी की सारी पोजीशन के लिए जो पोजीशन है उसको प्रिडिक्ट किया, तो हमको आंसर क्या मिला भाई, -5 के लिए -50 मिला, फिर 25 के लिए 6 किलोमीटर माइनस में मिला अंदर, बराबर। और उसके बाद हमको जो नेक्स्ट मिला 100 सेकंड के लिए, बराबर, तो उसका आंसर क्या मिला भाई, आपको 50 सेकंड मिला अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट, यस और नो?
बराबर है। चल अब हम आगे की बात करें तो लास्ट वाला एग्जांपल अब हम डिस्कस करते हैं। तो क्या बोलता है कि अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट द 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो राइट डाउन v0 इक्वल टू 0, ओके, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एट t इक्वल टू 10 सेकंड, सो t इक्वल टू 10 सेकंड, अ स्टोन इज ड्रॉप बाय द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक h इक्वल टू 6 मीटर, यानी कि हाइट आपको यहाँ पे दी गई है अंदर। सो व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन। तो आपको क्या करना है भाई, वेलोसिटी ऑफ स्टोन एंड एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन, यानी कि एस एस सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, पर उसके लिए जो टाइम दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, 11 सेकंड। तो वो t1 इक्वल टू 10 सेकंड बोल दें और t2 इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई, 11 सेकंड बोलेंगे अंदर। हम समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। अब शांति से समझो, कंसेप्ट आपका क्लियर हो ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम कभी भी नहीं होता अंदर, बराबर। अब है क्या कि जब भी बंदा तो ट्रक में था पहले, बराबर, स्टोन भी उसके पास ही था, बराबर। ट्रक अपनी रेस्ट कंडीशन में मोशन में आया और मोशन में वो कैसा मोशन है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन है, बराबर। तो यहाँ पे ट्रक जो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पोजेस करेगा वही वो पर्सन भी करेगा और वही वो पर्सन के हाथ में पड़ा स्टोन भी करेगा कि नहीं करेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ट्रेन वाला देखा था, अगर आपको याद आ रहा है तो। आ रहा है कुछ याद, बराबर। तो ना याद आ रहा हो तो पहले वो क्वेश्चन देखना फिर ये करना। तो दोनों में आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी अंदर। यहाँ पे खाली एक ही सिचुएशन की बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है अंदर, बराबर। अब हम बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि जब भी कोई भी बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो उसको ड्रॉप करते वक्त डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स तो लगता ही लगता है अंदर, और ग्रेविटी फोर्स की वजह से उसको जो वेलोसिटी मिलती है वो तो उसको मिलती है अंदर। पर अगर आप जहां से उसको थ्रो कर रहे हो उसका अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसको हॉरिजॉन्टल में भी कोई वेलोसिटी मिलेगी अंदर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड में गिरने जाएगा, कुछ ऐसा एंगल बना के गिरेगा अंदर। समझ में आ रहा है सबको इतना पार्ट। तो हमको यहाँ पे भाई दोनों चीज को कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा अंदर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब भी हम स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो उस टाइम पे ट्रक की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या है अंदर, बराबर। तो हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू v0 प्लस at। ए हमको पता है, t हमको पता है, इनिशियल तो 0 ही है अंदर, बराबर। तो आपको क्या है 10 इंटू 2 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि अभी जो ट्रक चल रहा है तो उसकी वजह से स्टोन के पास जो हॉरिजॉन्टल मोशन करने की जो वेलोसिटी है वो उसके पास राइट नाउ क्या है भाई 20 मीटर पर सेकंड अंदर, क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो यही चीज यहाँ पे बोली जाएगी कि स्टोन हियर मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब है क्या कि 10 सेकंड पे उसको ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि अब ट्रक के साथ उसका रिलेशन ब्रोक डाउन हो गया। तो ट्रक की वजह से उसकी वेलोसिटी में जो इंक्रीज होने वाला था वो अब 0 हो गया, यानी कि उसका जो राइट नाउ है वही का वही रहेगा। और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और हमको प्रोजेक्टाइल मोशन की थियरी पता है कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है अंदर, बराबर। इसीलिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिख के दिया है कि स्टोन अब 10 सेकंड के बाद जो भी मूव करेगा उसमें उसकी जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, बराबर, वो क्या रहेगी भाई कांस्टेंट रहेगी। सो देयर विल बी नो चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि स्टोन का एक्स कंपोनेंट जो है वो आपका क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड। अब बात करें वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे वर्टिकल एक्शन कब से कब लेना है हमको 10 से लेके 11 सेकंड का ही करना है, क्योंकि 10 सेकंड तक तो उसके हाथ में ही था, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था। वो स्टार्ट कब होता है 10 सेकंड में जब ड्रॉ किया तब से लेके 11 सेकंड में। तो ड्यूरेशन कितना हुआ भाई 1 सेकंड खाली हुआ कि ना हुआ अंदर, बराबर। तो वर्टिकल में हम उसकी वेलोसिटी की बात करें अंदर तो उसका इक्वेशन vy इक्वल टू क्या होगा v0y प्लस ayt। अभी इनिशियली फ्री फॉल ही करवा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल की तो 0 ही होगी, a की जगह 9.8 लिखेंगे, t का 1 लेंगे तो आपको vy की वैल्यू क्या मिलेगी भाई 9.8 मीटर पर सेकंड मिलेगी कि नहीं मिलेगी अंदर। तो आपको यहाँ पे एक वेलोसिटी x डायरेक्शन में और दूसरी वाली y में मिल रही है अंदर, तो एक x कंपोनेंट बन गया दूसरा y बन गया। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत है आपको अंदर, आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते अंदर, यस और नो। तो यहाँ पे आपको उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल गई कि ना मिल गई अंदर, बराबर। अब एक्सेलरेशन की बात करें अंदर तो यहाँ पे भाई एक्सेलरेशन उसको जब
11 सेकंड है, उस टाइम पे फाइंड करना है। तो 11 सेकंड में उसको खाली ग्रेविटी फोर्स ही लग रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल फोर्स कब से लगना बंद हो गया? 10 सेकंड से। तो 11 सेकंड में हम बोल सकते हैं कि ट्रक की वजह से उसको कोई एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है, उसको जो भी एक्सेलरेशन मिल रहा है वो ग्रेविटी का ही मिल रहा है। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया अंदर कि स्टोन मूव इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, हेंस एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो जीरो ही होगा। तो फिर जो बचा वो क्या हुआ? वर्टिकल का हुआ, जो अल्टीमेटली कौन है भाई? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है कि नहीं अंदर, बराबर। तो होप आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गया और थोड़ा बहुत मजा भी आया होगा कुछ नई चीज जानने का अंदर। ओके, नेक्स्ट टाइम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे हम कंटिन्यू करेंगे अंदर। ओके, थैंक यू।